Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back in your SST class. So, kids, as in our earlier classes, we had completed a topic of history, right? So, today in this class, we will learn a new topic in civics. So, without wasting time, let's start. So, this is your civics part of social studies. Today, we will learn a new topic in civics. Okay, so this is our chapter understanding diversity. In this chapter we will learn about diversity. हम diversity के बारे में जानेंगे इस chapter में. Unity in diversity, types of diversity, and we also learn that why India is called a diverse country. Okay, so before starting this chapter, firstly I want that you should be clear about the word diversity. आपको diversity होता क्या है वो clear हो. So firstly we will understand the meaning of word diversity. Diversity means a range of different things that you see and feel around yourself. It is important to understand that India is a large as well as a diverse country. This means that our country includes a great range of variety which can be seen in the differences in our clothes, food habits, looks, languages, festivals, and religions. You might have observed this difference in your class too. Among your friends, you must have observed that all your friends look different from each other, isn't it? Their food habits are different, right? And their mother tongues are also different. So it means that they speak different languages, they look different from each other, and their food habits, their culture, everything is very different. This is diversity, and it is not only one of the main features of India, but diversity makes India different from the other countries of the world. Because we all know that India is a diverse country. Here, people of different religions, different castes, different languages live together in a peaceful manner. So, this diversity is one of the main features of India. So kids, what did we learn about diversity? Diversity क्या है? Diversity is basically the differences in terms of caste, religion, culture, religious belief, age, socio-economic background, physical abilities, right? इन सब के बेसिस पे हम सब डिफरेंट हैं. मेरी एज डिफरेंट है, मेरी फूड हैबिट डिफरेंट है, आपकी एज भी डिफरेंट है, आपकी फूड हैबिट डिफरेंट है, आपकी कास्ट अलग है, माई कास्ट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सो हमारी मदर टंग भी अलग है, राइट? सो हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होता है. सबकी ड्रेसिंग सेंस अलग होती है, सबके बात करने का तरीका अलग होता है, सबकी कास्ट अलग होती है, सबकी रिलीजियस बिलीव्स अलग होते हैं, राइट? सो यही डिफरेंसेस हमें यूनिक बनाते हैं और यही इसी यूनिकनेस को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. ओके, आई होप नाउ it is clear to all that what diversity is. Now let's start with our chapter Get Going. Aditya gave some delicious pongal to his grandmother and said, "Grandma, this is pongal. My friend Venkat gave it to me. Today is Pongal festival, so his mother made it at home." So इसमें क्या बताया है कि आदित्य अपनी दादी को, अपनी ग्रैंडमदर को पोंगल देता है. एंड व्हाट ही सेड डैट मेरे फ्रेंड ने ये मुझे दिया है जस्ट बिकॉज उनके घर में पोंगल का फेस्टिवल था एंड उसकी मदर ने ये बनाया है. इट्स वंडरफुल टू हैव अ फ्रेंड फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, इजंट इट? यू गेट टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स. हिज ग्रैंडमा बीम्ड. उसकी ग्रैंडमा स्माइल करती हैं. बीम्ड मतलब शी इज़ स्माइलिंग. सो क्या कहती हैं उसकी ग्रैंडमा स्माइल करते हुए? दैट इज़ंट इट वंडरफुल टू हैव अ फ्रेंड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. अगर हमारा फ्रेंड डिफरेंट स्टेट से है तो हमें उस स्टेट के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं, राइट? हम वहाँ के डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में लर्न कर सकते हैं, हमें
सीखने को मिलता है, हमें वहाँ की डिफरेंट डिशेस के बारे में पता चलता है, राइट, एंड हमें खाने को भी मिलती है, क्यों, है ना। सो यही उसी ग्रैंड माँ बोलती है कि अगर फ्रेंड्स डिफरेंट स्टेट से होते हैं तो वी गेट टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आदित्य को अपने फ्रेंड वेंकट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसके स्टेट के बारे में। पोंगल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? यस, इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। डिफरेंट स्टेट में ये जो फेस्टिवल है पोंगल जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन डिफरेंट स्टेट में और भी डिफरेंट फेस्टिवल, हार्वेस्टेड फेस्टिवल बोला जाता है इसे, सेलिब्रेट किए जाते हैं। लाइक असम में बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, हमारी साइड मकर संक्रांति, लोहड़ी मनाई जाती है, राइट। सो ऐसे ही डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं हमारी इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स में, जो हम सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। एंड जब हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे फ्रेंड डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से होते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, diversity. When you look around in your class, you will notice that each one of you is different from the other. जब हम अपनी क्लास के when you look around in your class, आप जब अपनी क्लास में देखोगे तो आप क्या पाओगे? that everyone and each one of you is different from the other. हम सब अलग हैं, हम सबके फेसेस डिफरेंट हैं, राइट। some are girls, some are boys, some are tall, some are short, some come to school by bus, some walk to school, and some come to school by private vehicles, etc. So there can also be other differences such as the language you speak at home, the kind of music you enjoy, the kind of food you eat, the religion you follow, or the kind of books you read. So बहुत से differences होते हैं जिसमें हर एक person एक दूसरे से different होता है। हमारा म्यूज़िक, फेवरेट म्यूज़िक डिफरेंट होता है, हमारे फूड डिफरेंट होते हैं, हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, हम जिसमें अपने घर में बात करते हैं हमारी मदर टंग जो होती है, राइट। हमें डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ना पसंद है, राइट। किसी को एडवेंचरस बुक पढ़ना पसंद होता है, किसी को फेरी टेल्स पढ़ना पसंद होता है, राइट। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं एंड इन्हीं वे में सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। All these differences are less obvious but are equally important in making each one of us unique. So, ये सब जो differences बताए थे अभी, ये भले ही less obvious है, less important है, मतलब जिनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये equally important है हम सबको एक दूसरे से यूनिक बनाने में, डिफरेंट बनाने में, राइट। सो दिस स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। यही डिफरेंसेस हमें एक दूसरे से यूनिक बनाते हैं और इसी स्टेट ऑफ डिफरेंट और यूनिकनेस को बोला जाता है डाइवर्सिटी। पीपल कैन बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, एज, फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब फिजिकल क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजियस बिलीफ। एथनिसिटी का मीनिंग होता है व्हेन वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, मतलब एक जाति से जब कोई बिलोंग करता है उसे इस चीज़ को बोलते हैं एथनिसिटी। सो यही सब डिफरेंसेस हैं जो हमें यूनिक बनाते हैं। नीड फॉर डाइवर्सिटी, व्हेन डिफरेंसेस आर नॉट सीन एज रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डाइवर्सिटी वर्क्स वंडर। सी, ये जो डिफरेंसेस हैं अगर हम इन्हें भेदभाव की नज़रों से ना देखें, मतलब इनके बेसिस पे हम भेदभाव अगर ना करें तभी डाइवर्सिटी वर्क करेगी। इट इज़ ओनली व्हेन डाइवर्सिटी इज स्टडीड एंड अंडरस्टूड इन अ पॉजिटिव वे, नर्चरिंग एनवायरनमेंट, नर्चरिंग मतलब एनवायरनमेंट की टेक केयर करना, दैट वी कैन राइज अबव रीजन, कास्ट, रिलीजन, क्लास एक्सेट्रा। सी, अगर हम डाइवर्सिटी को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, मतलब ये जो हम आपस में डिफरेंट है, ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं, अगर हम इन्हें पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तभी हम रीज़न, कास्ट, रिलीजन, क्लास इन सब से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सब हमारे एनवायरनमेंट में है एंड हमें इसकी टेक केयर करनी चाहिए इन अ पॉजिटिव वे। इट इज़ ऑल अबाउट आवर रेडीनेस टू अंडरस्टैंड
accept, embrace and celebrate the diversity contained within each individual. Embrace मतलब to accept, मतलब ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम एक्सेप्ट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे डाइवर्सिटी को मिल के जो सभी इंडिविजुअल के अंदर है, राइट. डाइवर्सिटी एनरिचेज आवर लाइफ्स. डाइवर्सिटी एनरिच करती है हमारी लाइफ को. एनरिच मतलब हमारी लाइफ को समृद्ध करती है. इमेजिन अ वर्ल्ड फुल ऑफ आइडेंटिकल पीपल वेयर एवरीवन लुक्स the same, dresses in the same way, talks in the same language, behaves in the same way. Would you like to live in such a world? Living with a diverse group of people help us to learn from them. See, यहाँ पे बताया गया है कि आप इमेजिन करके देखो कि हम सबके फेसेस भी सेम हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस भी सेम है, हमारी लैंग्वेजेस भी सेम है, एंड वी ऑल्सो बिहेव्स इन अ सेम वे. तो क्या आप उस वर्ल्ड में रह पाएंगे? क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है. बोर नहीं हो जाएंगे हम सब? और फिर हम कैसे कुछ नया सीख पाएंगे? हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे जस्ट बिकॉज कुछ यूनिक क्वालिटी तो किसी के अंदर होगी ही नहीं. सो लिविंग विद द डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम दैम. डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जब हम रहते हैं, विभिन्न लोगों के साथ बीच में जब हम रहते हैं, तो हम बहुत कुछ सीख पाते हैं. ईच वन ऑफ अस ऑब्जर्व डिफरेंट कल्चर्स एंड बिकम मोर टॉलरेंट. Therefore, it is very important to learn to accept people along with their differences. हम सब डिफरेंट कल्चर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, जानते हैं उनके बारे में, एंड हम मोर टॉलरेंट बन जाते हैं. मतलब हमारी जो सहन शक्ति है, धैर्यता है, वो बढ़ जाती है, राइट. Therefore, it is important to learn to accept the people along with their differences. हमें लोगों को उनके डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी और द नीड ऑफ डाइवर्सिटी. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न फर्दर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट वी हैव लर्न टुडे. सो थैंक यू एंड टेक केयर.